Good morning, student. Now today I am going to explain you the first chapter, the best Christmas present in the world, and this chapter is written by the Michael Morpurgo. Okay, now let's see what is the story, the best Christmas present in the world. This is the story of the soldier. And narrator found a letter of the soldier which was not dispatched. And when narrator decided to dispatch this letter, he got that when he met soldier's wife, and when he given the letter to the soldier's wife thought that her husband fulfill his promise that he present on the Christmas day, and that is the best Christmas present in the world, that of the soldier's wife. Let's see now what is the story. So we will start from the before you read. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. So the dates and the period are more important in the history. Why? Because particular date and a particular history show the event, and we have to understand what is the importance of the event which was happened on that day. So in this story we will see the dates, and this story related to the soldiers of the British and the German country. So let's see now what is the story. Now the first part, that is the given. I'm going to start now from here. I spotted means saw, that is saw it in a junk shop. What is a junk shop? Junk shop is a one place where we used item going to sell. Okay, used item going to sell in a breadport. So breadport is a place where he saw that a roll top desk. वहाँ पे वो क्या देखता है? एक roll top desk को देखता है. कहाँ पे? Used item जहाँ पे sell की जाती है, that is a junk shop पे, और वो कहाँ था? breadport में था. The man, who is I here? I is a narrator. Okay. I is a narrator here. The man said it was early 19th century, and the man, it is a seller. Seller ने क्या बताया about the roll top desk? It related to the 19th century. 19th century में वो बना हुआ था, and it is made by the oak wood. Okay, oak is a tree, and उस tree के wood से ये बनाया गया था. I had wanted one. It means the narrator want to purchase this type of roll top desk. वो वैसा ही एक खरीदना चाहता था, but they were far too expensive. Expensive means high, much money. तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से वो उसे खरीद नहीं पा रहा था. This was one in a bad condition. ये जो roll top desk था उसकी कंडीशन क्या थी? That was a bad condition. The roll top in several pieces. छोटे छोटे जो उसके पार्ट्स थे वो निकल रहे थे, तो पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाता अगर उसे रिपेयर नहीं किया जाता तो. वन लेग, उसका जो एक लेग था, दैट वाज अ क्लम्सली मीन्स दैट इज अ हैंगिंग. मैंडेड मीन्स नॉट फिट, प्रॉपर जो नहीं लगे. ठीक है, तो उसका जो लेग था वो क्या था? हैंगिंग कर रहा था, लटक रहा था. स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन ऑन द साइड, और साइड पे क्या लगे हुए थे? स्क्रॉच के मार्क्स लगे हुए थे, मतलब उसे रगड़ा भी गया था, हो सकता है उसे प्रॉपर प्लेस पे रखा नहीं गया हो. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, मतलब कि उसकी प्राइस बहुत लेस थी.
I thought I could restore it. Restore it means repair. That is a repair. Okay, that restore means repair. तो वो उसे क्या करना चाहता था? राइटर सोच रहा था कि मैं उसे रिपेयर कर दूंगा. इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की था. वाई? बिकॉज रोल टॉप डेक्स इन अ बैड कंडीशन. बट आई हैड टू हैव इट. लेकिन मैंने ऐसा करने का सोच रखा था कि मैं उसे रिपेयर कर दूंगा. आई पेड द मैन. मैंने उसे पैसे दिए जितना उसका प्राइस था. एंड ब्रॉट इट बैक. ब्रॉट, that is a second form of the verb of a bring. It is a V2 verb का second form. What is the V1? That is a bring. Okay, तो मैंने क्या किया? उसे अपने घर लाया. It back to my workroom at the back of the garage. उसने कहाँ पे उसको रखा? गैराज के पीछे जो उसका वर्करूम था, where he was going to repair it. आई बिगेन वर्क ऑन इट. मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया. कब शुरू किया? ऑन द क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव के टाइम पे. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली. जो डेस्क था, उस डेस्क के ऊपर का जो पार्ट था उसको पूरी तरीके से उसने क्या किया? रिमूव कर दिया. ओके. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स. और फिर उसके साइड में जो ड्रॉवर्स लगे हुए थे वो उसको क्या कर रहा था? उसको निकालने की वो कोशिश करने लगा. द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. विनर मीन्स जो इसके ऊपर माइका जैसा लगाया जाता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो हमें और अट्रैक्टिव दिखाई दे. ये सारी चीज़ें क्या थी? बाहर निकल रही थी. दैट इज़ अ विनर. द थिन लेयर ऑफ द प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड और फर्नीचर ऑफ चीप वुड. और वो क्या करते हैं? उस पर डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं जिससे कि वो उस रोल टॉप डेस्क का जो अट्रैक्शन है वो अच्छा दिखाई दे. देन आफ्टर नाउ व्हाट हैपन? लेट्स सी. लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो ऊपर रोल टॉप डेस्क के ऊपर जो विनर लगा हुआ था वो पूरी तरीके से क्या हुआ था? वाटर ने उसको डैमेज कर रखा था. ठीक है. बोथ फायर एंड वाटर. फायर और वाटर ने क्या कर रखा था? क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेक. उसको फायर और वाटर ने भी क्या कर रखा था? डैमेज कर रखा था. ठीक है, डैमेज कर रखा था. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट. यहाँ पे जो साइड में रोल टॉप डेस्क के ड्रॉवर बना था उसमें जो ड्रॉवर थे उसमें जो लास्ट ड्रॉवर था दैट वन इज स्टक. वो क्या था? उसमें जैम हो गया था. आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली. जेंटली मीन्स सॉफ्टली. दैट इज अ सॉफ्टली. ठीक है. वो क्या करना चाहता था? वो सॉफ्टली उसको निकालना चाहता था. पूरा उसने कोशिश किया. पूरा आई ट्राइड इट. ओके. इन द एंड, लेकिन लास्ट में आई यूज ब्रूट फोर्स. ब्रूट मीन्स क्या होता है? हार्ड. दैट इज अ हार्ड फोर्स उसने क्या किया? उस पर अप्लाई किया. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट. फिस्ट मीन्स हैंड. ठीक है. पाम जिसको हम बोलते हैं, हथेली जिसको बोलते हैं, उसमें क्या हुआ? वो तेजी से निकला और मेरे हाथ में आ गया. एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन. ड्रॉवर जो था वो क्या हो गया? ओपन हो गया. टू रिवेल अ शैलो स्पेस अंडरनीथ. उसके नीचे, अंडरनीथ मीन्स बीनीथ. उसके नीचे क्या था? एक स्पेस, हॉलो स्पेस दिखाई दे रहा था. मतलब कि इस ड्रॉवर के अंदर, लास्ट जो ड्रॉवर था उसके अंदर एक स्पेस दिखाई दे रहा था कि कुछ और भी चीज़ें हम अंदर रख सकते थे. जस्ट लाइक अ सीक्रेट थिंग्स. देयर वॉज समथिंग इन देयर. कुछ उसके अंदर रखा गया था. आई रीच्ड इन. मैंने उसको ध्यान से देखा. एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. और उसमें क्या रखा हुआ था? एक टिन बॉक्स रखा था जो ब्लैक कलर का था. सेलो टेप्ड ऑन द टॉप. उसके टॉप पे क्या था? सेलो टेप भी लगा हुआ था. इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर. एक नोट पेपर लगी हुई थी जो लाइन वाली थी
जैसे हमारी नोटबुक होती है वैसे कोई पेज निकाल के ऊपर सेलो टेप से उस पर स्टिक कर दिया गया था. एंड रिटन ऑन इट्स अ शेकी. शेकी मीन्स व्हाट? दैट इज अ वाइब्रेट. वाइब्रेट हैंड राइटिंग. और उस पर वाइब्रेट, जैसे कि लिखते समय अगर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो या फिर प्रॉपरली हम लिख नहीं पाए तो ऐसे कांपते हुए हाथों से, शेकिंग करते हुए हाथों से, वाइब्रेट करते हुए हाथों से हम उस पर लिख रहे थे. तो उस पर भी ऐसा ही लिखा हुआ था. एंड दैट इज़ अ हैंड राइटिंग. व्हाट इज़ रिटन? जेम्स लास्ट लेटर. ये जेम्स का या जिम का लास्ट लेटर था. और रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. जिसको रिसीव किया गया था जनवरी 25, 1915 को. So now see what is the next after. Okay. So to be buried. Buried means burn. What is the means of buried? Buried means burn. With me when the time comes. It means कि जब वो मरने वाला हो उस समय इस लेटर को भी उसके साथ क्या करना चाहिए? बर्न कर देना चाहिए था. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब यहाँ पे नैरेटर क्या कर रहे हैं कि मुझे पता था कि मैं जो भी करने जा रहा था वो गलत था. और वो क्या करने जा रहे थे? ओपन द बॉक्स. उस बॉक्स को ओपन करने जा रहे थे. क्यों गलत था? बिकॉज दिस बॉक्स इज नॉट रिलेटेड टू द राइटर बट ही हैज़ सम क्यूरियोसिटी and he want to open it, but curiosity got the better of by scruples. It usually does. Scruples means that is a feeling that make you hesitate to do something wrong. किसी भी गलत चीज़ को करने से पहले आपको अपने अंदर से होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए. तो यहाँ भी क्या हो रहा था? राइटर को ऐसा लग रहा था कि ये जो चीज़ है वो उनकी तो है नहीं. सो वाई आर गोइंग टू ओपन इट. तो लेकिन क्यूरियोसिटी जो उनके अंदर थी वो कह रही थी कि नहीं भाई ओपन करो एंड यू हैव टू सी व्हाट इज इनसाइड. सो नाउ ही डिसाइडेड टू गो टू ओपन इट. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप. अब उनको बॉक्स के अंदर क्या मिलता है? एक एनवेलप मिलता है. द एड्रेस रीड. और एनवेलप के ऊपर क्या था? ऑन द एनवेलप वन एड्रेस ही गॉट. What is? Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beach, Bridport, Dorset. ठीक है. तो ये उनके लेटर के ऊपर लिखा हुआ मिला उनको एड्रेस. I took out the letter. He collected the letter from there and unfolded it, and he is going to fold it. It was written in a pencil and dated at the top. अब उन्होंने क्या किया? लेटर को निकाला, उसको ओपन किया और उस पर एक डेट लिखा हुआ था. किससे लिखा था? दैट वॉज रिटन बाय द पेंसिल. एंड वॉट इज द डेट इज गिवन ऑन द टॉप? इट इज़ December 26, 1914. तो ये 1914 का जो टाइम था यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना कि ये किस समय है. दैट इज़ अ वॉर कंडीशन. ठीक है. वॉर के कंडीशन के समय ये लेटर लिखा गया था और उसे सेंड नहीं किया गया था. नाउ लेट्स सी द कॉम्प्रिहेंशन. सम क्वेश्चंस आर हियर. First is, what did the author find in a junk shop? So what did he find? He find a roll top decks. Okay, so you have to write the answer, roll top decks. Okay, now the next one, what did he find in a secret drawer? What did he find? A tin box. A tin box, he found it. Who do you think had put it in there? अब उसके अंदर ये किसने रखा? तो दैट वॉज केप्ट बाय द सोल्जर. हु? जिम. वाई? बिकॉज इट इज रिटन बाय द जिम टू हिज वाइफ. ओके, एंड दिस लेटर बिलोंग्स टू हिज वाइफ Mrs. Jim McPherson. So student, I hope to understand that is the first part of your chapter, the best Christmas present in the world, and next lecture I will explain the second part. Thank you.